we'll read the topic chemical reaction and equation. What is the physical change and what is the chemical change? Chemical change means one or more new substance with new physical and chemical properties are formed. It means एक से अधिक सब्सटेंस से कोई नया फिजिकल और मतलब कोई नया फिजिकल सब्सटेंस बने जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही बने, वो क्या होता है? केमिकल चेंज होता है. यदि आयरन मतलब आयरन में अगर कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट मिलाएंगे एक्वस का, तो क्या होगा? आयरन सल्फेट बनेगा और कॉपर क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट के रूप में अलग हो जाएगा. हियर व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद आयरन द टू न्यू सब्सटेंस फेरस सल्फेट एंड कॉपर आर फॉर्म्ड. इट मीन्स व्हेन कॉपर सल्फेट अगर आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो दो नए सब्सटेंस बनते हैं, फेरस सल्फेट एंड कॉपर. फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज वो होता है चेंज इन द कलर और स्टेट अकर्स बट नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड. फिजिकल चेंज मतलब होता है कि मतलब कोई भी उसके सिर्फ कलर और स्टेट में चेंज हो जाएगा, मतलब कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा. जैसे वाटर है, वाटर स्टेम में चेंज हो जाएगा, वाटर चेंज टू स्टेम ऑन बॉइलिंग बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. दे इन्वॉल्व्स ओनली चेंज इन द स्टेट. Liquid to vapor. How can you determine a chemical reaction? There are many types. There are many forms of the chemical reactions. A chemical reaction can be determined with the help of any of the following observations: evolution of a gas, change in the temperature, formation of precipitate, change in the color, change of the state. Chemical reactions are the chemical change in which reactants transform into the products by making or breaking of a bonds between different atoms. जो केमिकल रिएक्शन होता है वो और केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज होता है वो जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको प्रोडक्ट को बना के या तोड़ के उसके बॉन्ड को एक डिफरेंट एटम्स के बीच में होता है. टाइप ऑफ केमिकल देखिए type of chemical reactions taking into consideration different factors. Chemical reaction are grouped into multiple categories. How many type of chemical reaction? There are many types of chemical reaction: combination, decomposition, single displacement, double displacement, redox, endothermic, exothermic, precipitation and neutralizations. वर्ड इक्वेशन क्या होता है? वर्ड इक्वेशन मतलब होता है जहाँ पे हम किसी भी प्रोडक्ट में हम क्या कहते हैं, वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं. जैसे सोडियम प्लस फ्लोरीन इज इक्वल टू सोडियम क्लोराइड. यहाँ पे हम किसी भी सिंबल का यूज़ नहीं करते. सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड देयर वैलेंसीज. अ सिंबल इज अ केमिकल कोड ऑफ एन फॉर एलिमेंट. Each element has one or two letter atomic symbols, which is the abbreviated form of its name. Valency is the combined capacity of an element. It can be considered as the number of electron loss gain or shared by an atom when it combines with another atom to form a molecule. It means symbol होता है कोई किसी भी मतलब एलिमेंट का हम कोई फर्स्ट लेटर या सेकेंड लेटर लेते हैं जिसको एब्रिवेट करते हैं उसके नाम के थ्रू. और वैलेंसी होती है किसी भी एलिमेंट की कैपेसिटी होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है में कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, कितना गेन हुआ, कितना शेयर हुआ, और जो मतलब अनदर आइटम के साथ वो होता है वो मॉलिक्यूल बना लेता है. राइटिंग केमिकल इक्वेशन. रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अ सिंबल्स एंड केमिकल्स. Representation of a chemical reaction in terms of symbols and chemical formula of the reaction and products is known as a chemical reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना विद द हेल्प ऑफ सिंबल और उसे फॉर्मूला तैयार करके एक रिएक्टेंट बनाना, उसे हम केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं. For solid the symbol is S, liquid is L and gas is a G. For aqueous is a AQ and for gas produced in the reactions it is represented by the up and side arrow, and for precipitate form the reactants. For precipitate form the reaction is represented by the downside arrow. Balancing of a chemical reactions. How can we balance of the chemical reaction? Conservation of mass, balanced chemical equations, steps for a balancing chemical equations. Conservation of mass. According to the law of a conservation mass, no atoms can be created or destroyed in a chemical reaction. So the number of atoms for each element is reactants side adds to the balance the number of atoms that are present in the product side. In other words, the total mass of the products formed in the chemical reaction equal to the total mass of the reactant participated in the chemical reaction. It means what is the conservation of mass? It means जहाँ पे जितना reactant का mass होगा उतना ही product का mass होगा. We can say the total mass of the product formed is the chemical reaction is equal to the total mass of the reactant participate in the chemical reaction. अगर यहाँ पे 2 है तो तुम्हारे प्रोडक्ट में अगर 2 है तो रिएक्टेंट में भी तुम्हारा 2 ही आएगा. Balanced chemical equations. The chemical equation with the number of atoms of each element in the reactant side is equal to that the product of side is called balanced chemical reactions.
The chemical reaction equation with the number of atoms of each element in the reactant side is equal of the to that the product side is called the balanced chemical reaction. Steps for balancing chemical equation: hit and trial method. While balancing the equation, change the coefficient so that the number of atoms of each atom is same on each side of the chemical reaction. A CS COCO3 B H3PO4 Ca3PO4 का होल ट्वाइस प्लस H2CO3. इट मीन्स अगर हम इसे बैलेंस करेंगे तो हम पहले देखेंगे सी ए के कितने मॉलिक्यूल्स हैं प्रोडक्ट में और सी ए कितने मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट में. अगर प्रोडक्ट में कैल्शियम फॉस्फेट में सी ए के 3 मॉलिक्यूल्स है तो हम रिएक्टेंट पे भी अगर रिएक्टेंट में केमिकल फॉस्फेट के कैल्शियम फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो हम प्रोडक्ट के में भी 3 सी ए लगा देंगे. अब CO3 की संख्या गिनेंगे तो CO3 इज इक्वल, अगर CO3 के यहाँ पे यानी ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 6 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे ऑक्सीजन के इधर, तो हम यहाँ भी हम 3 लगा देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा. एंड H3PO4 है, H3 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं इधर 2 मॉलिक्यूल्स है और इधर हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स है तो हम इधर 2 ऐड कर देंगे इन द प्रोडक्ट. तो ये जो रिएक्शंस हैं वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, इन्हें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस 2 एलिमेंट्स और 1 एलिमेंट इन 1 कंपाउंड और 2 कंपाउंड कॉम्बाइन टू गिव वन सिंगल प्रोडक्ट. इट मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है जहाँ पे हम 2 एलिमेंट और किसी भी एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के साथ किसी भी एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाते हैं. ऐसे H2 है एक एलिमेंट है, Cl2 है एक एलिमेंट है, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा 2HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा. CO है O2 है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन इनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा. NH3 प्लस HCl है, अमोनिया है प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड है, क्या बन जाएगा NH4Cl बन जाएगा. डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी गिव 2 और मोर प्रोडक्ट्स. इट मीन्स जो सिंगल रिएक्टेंट होता है किसी भी एप्लीकेशन का हीट और लाइट के थ्रू क्या करता है 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनाता है, टूट जाता है. टाइप ऑफ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, decomposition will require heat, thermolytic decomposition or thermolysis, decomposition reaction which require light, photolytic decomposition or photolysis. It means जो thermolytic decomposition होता है वो हीट के थ्रू उसे हीट चाहिए होती है और जो तुम्हारा लाइट के थ्रू होता है वो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है. और डिकम्पोजिशन रिक्वायर्स विच रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, more reactive element displace a less reactive element from its compound or solutions. जो रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है लेस अपने कंपाउंड को लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स के साथ डिस्प्लेस कर देता है. जैसे Zn है, Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस कॉपर निकल जाएगा. Cu प्लस AgNO3 है यानी सिल्वर नाइट्रेट है तो CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag निकल जाएगा. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, an exchange of ions between the reactants takes place to give new products. जो रिएक्टेंट्स होते हैं किसी भी आयंस के बीच चेंज करते हैं तो उससे क्या होता है न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है. Al2SO4 का होल ट्वाइस प्लस 3AOH का होल ट्वाइस इज इक्वल टू एल्यूमिनियम सल्फेट अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो AlOH का होल ट्वाइस यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और कैल्शियम फॉस्फेट अलग हो जाएगा. प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, an insoluble compound called precipitate from when 2 solution containing soluble salts are combined. It means कोई भी insoluble compound होता है उसे हम precipitate कहते हैं और वहाँ जहाँ पे दो solution soluble होते हैं किसी भी 2 soluble salts are combined जहाँ पे 2 soluble salts घुले होते हैं उसमें से एक precipitate निकल जाता है. PbNO3 का होल ट्वाइस है प्लस 2Ki है प्लस क्या बन जाएगा जब इससे रिएक्टेंट बनेगा तो क्या बन जाएगा KNO3 प्लस PbI2 यानी इसको यानी कि लेड आयोडाइड बन जाएगा. इसमें येलो प्रेसिपिटेट क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा. रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही जगह पर होता है. ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है सब्सटेंस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑक्सीजन और लॉसेस हाइड्रोजन. मतलब ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसमें से ऑक्सीजन क्या होगा गेन होगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा. रिडक्शन में क्या होता है, इसमें क्या होता है इसमें ऑक्सीजन का लॉस होता है और हाइड्रोजन गेन्स होता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, अ सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस एंड सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड. मीन्स अ सब्सटेंस जो होता है वो किसी भी अनदर सब्सटेंस के साथ रिड्यूस हो जाता है. खुद ही रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, अ सब्सटेंस दैट रिड्यूस अनदर सब्सटेंस एंड सेल्फ
गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, वो खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइजेशन क्या होता है, अपने आप को खुद रिड्यूस कर लेता है। जैसे Fe है, Fe प्लस CuSO4 है, तो FeSO4 प्लस Cu निकल जाएगा, तो Fe इज इक्वल टू Fe2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो रहे हैं, मतलब ऑक्सीडेशन है यहाँ पे। आयरन क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और Cu2 प्लस है, Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे, तो क्या निकल जाएगा, Cu निकल जाएगा। ठीक, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। या Cu क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग अ रिएक्शंस, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक, जो हीट होती है रिएक्शन के थ्रू इवॉल्व होती है। मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक, ज़्यादातर जो रिएक्शंस होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं। इसमें क्या होती है, रिएक्शन के थ्रू हीट क्या होती है, निकलती है, इवॉल्व होती है। तो Al2 प्लस Fe2O3 इज इक्वल टू Al2O3 प्लस Fe प्लस हीट, मतलब इसमें आयरन क्या हो रहा है, निकल रहा है। हीट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ऑफ द रिएक्शंस। जैसे 6CO2 प्लस H2O है, प्लस सनलाइट है, C6H12O6 प्लस 6CO2, यानी मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन सारा एंडोथर्मिक। कोरोजन क्या होता है, ग्रेजुअल कोरोजन मतलब होता है जैसे जंग लगना, जिस टाइप का उसे मॉइस्चर लग जाएगा तो उसमें जो एनवायरनमेंट होगा वो उसको ले लेगा, उसकी मतलब ऑक्सीडेशन को, मतलब उसकी ऑक्सीजन को ये एक्सेप्ट कर लेता है कि कोई मेटल, तो उसमें जंग लगना चाहता है, वो होता है कोरोजन। कोरोजन मतलब डिटोराइजेशन ऑफ अ मेटल, यूजली अ मेटल बाय द एक्शन ऑफ अ मॉइस्चर, एयर और केमिकल द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। 4Fe प्लस 3O2 इज इक्वल टू H2O, तो क्या बन जाएगा, Fe2O3 प्लस Fe2O3H2, यानी रस्ट बन जाएगा। Cu कोरोजन ऑफ कॉपर, कॉपर का कैसे कोरोजन होता है, कॉपर में अगर हम H2O प्लस CO2 एयर CO2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, CuSO3 प्लस CuH का होल ट्वाइस, ग्रीन कलर से प्रेसिपिटेट मतलब निकल जाएगा। कोरोजन ऑफ सिल्वर Ag प्लस H2S इक्वल टू Ag2S प्लस ब्लैक, कोई मतलब चांदी होता है तो क्या हो जाता है, वो ब्लैक हो जाता है, अगर हम से कोरोजन लगता है मतलब तो ब्लैक कलर का हो जाता है। और आयरन में पीला कलर का कुछ रस्ट आ जाता है। और रेसिड्यू क्या होता है, किसी भी चीज़ को बहुत ही लंबे समय तक स्टोर करना, रेसिड्यू। इट गिव्स फोर स्माइल एंड बैड टेस्ट द फूड एंड फूड कास्ट स्टमक इन्फेक्शन एंड कंसप्शन, यूज ऑफ एयर टाइट इन सब चीज़ों से बचने के लिए इट रिफर्स टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल द फूड दैट इज केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम। ज़्यादातर हमें इन सब बचने के लिए एयर टाइट कंटेनर का यूज़ करना चाहिए। पैकेजिंग विथ नाइट्रोजन, रेफ्रिजरेशन, एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजर्वेशन।